اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ما یعرف به الفاعل من المفعول وَأَكْثَرُ مَا يَشْتَبِهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا اسْمًا نَاقِصًا وَالْآخَرُ اسْمًا تَامًا وَالطَّرِيقُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَن تَجْعَلَ فِي مَوْضِعِ التَّامِّ إِنْ كَانَ مَرْفُوعًا ضَمِيرَ الْمُتَكَلِّمِ الْمَرْفُوعُ وَإِنْ كَانَ مَنْصُوبًا ضَمِيرَهُ الْمَنْصُوبُ وَتُبْدَلُ مِنَ النَّاقِصِ اسْمًا بِمَعْنَاهُ فِي الْعَقْلِ وَعَدَمِهِ۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو بھائیو، آج بحث ہماری ایسے چیز کے بارے میں ہے کہ وہ کیا قانون ہے جس کے ذریعے سے فاعل کو مفعول سے پہچانا جاتا ہے۔ ما یعرف به الفاعل من المفعول، وہ قانون جس کے ذریعے سے فاعل کو مفعول سے پہچانا جاتا ہے، اور اکثر یہ چیز کہ فاعل اور مفعول آپس میں مخلوط ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ فاعل کون ہے مفعول کون ہے، اور پھر وہ کیا قانون ہے جس کے ذریعے سے فاعل کو مفعول سے پہچانا جاتا ہے۔ اکثر جو یہ اشتباہ ہوتا ہے فاعل اور مفعول کا کہ فاعل کون ہے مفعول کون ہے، اکثر اشتباہ وہاں ہوتا ہے جہاں ایک اسم ناقص ہو اور دوسرا اسم تام ہو۔ اکثر یہاں اشتباہ ہوتا ہے کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے۔ اکثر اشتباہ کہاں ہو رہا ہے؟ جہاں دو اسم ہیں، ایک اسم ناقص ہے اور دوسرا اسم تام ہے۔ اسم ناقص سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا اسم جس کو صلہ کی ضرورت ہے، صفت کی ضرورت ہے، جیسے من ہے، مائے موصولہ ہے یا موصوفہ، ٹھیک ہے نا، یہ اسم ناقص کہلاتا ہے۔ اسم ناقص کون ہے؟ جو صلہ کا محتاج ہے، صفت کا محتاج ہے، جیسے من، مائے موصولہ۔ اور دوسرا جو ہے وہ اسم تام ہے۔ اسم تام یعنی جو محتاج نہیں ہے، جیسے زید ہے، عمر ہے، جس کا معنی مکمل ہے، یہ اسم تام کہلاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جب ایک اسم ناقص ہو اور ایک اسم تام ہو تو وہاں فاعل اور مفعول میں ملنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو کیا قانون ہے، کیا طریقہ کار ہے ہمارے پاس کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے۔ توجہ فرمانا، عرض کر رہا ہوں، جب ایک اسم تام ہو اور دوسرا اسم ناقص ہو اور وہ جو اسم تام ہے وہ ہو مرفوع، اسم تام اگر مرفوع ہے تو اس کو ہٹا لیں اور اس اسم تام کی جگہ پر ضمیر متکلم مرفوع کو رکھ دیں۔ اگر وہ اسم تام منصوب ہے تو اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پر ضمیر منصوبی رکھ دیں ایک طرف۔ دوسری طرف وہ جو اسم ناقص ہے، اسم ناقص کو ہٹاؤ، اسم ناقص کی جگہ پر ایک اسم رکھیں جو اس کے معنی میں ہو، عقل کے لحاظ سے یا عدم عقل کے لحاظ سے اسی کے معنی میں ہونا چاہیے۔ اسم ناقص کی جگہ پر اسم رکھیں جو اس اسم ناقص کے معنی میں ہو، فی العقل و عدم، صاحب عقل یا عدم عقل ہونے کے لحاظ سے۔ جب آپ یہ کارروائی کر لیں گے تو اگر یہ رکھنے کے بعد یہ جو قرار دیا ہے آپ نے یہ کام، اگر مسئلہ ٹھیک ہے تو یہ اس قرار دینے سے پہلے بھی یہ ٹھیک تھا۔ اگر آپ نے یہ کام کیا اور یہ مسئلہ ٹھیک ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرار دینے سے پہلے بھی یہ کام صحیح تھا۔ وَإِلَّا
अगर आपने ये जो कार्रवाई मैंने बताई है, ये करना अगर किया और ठीक न हुआ तो इसका मतलब ये है कि पहले वाला भी मसला जो है वो फासिद था, पहले वाला भी ठीक नहीं था। मिसाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, लेकिन एक मरतबा फिर सुनो। आज जनाब पढ़ के आ रहे हैं जनाब वो कानून जिसके ज़रिए से फ़ाइल को मफूल से पहचाना जाता है, इसको पढ़ना चाह रहे हैं आज हम। और अक्सर जो ये इश्तिबा होता है फ़ाइल और मफूल में, पता नहीं चलता फ़ाइल कौन है मफूल कौन है। ये कहाँ होता है? जहाँ एक इसमें नाकिस हो और दूसरा इसमें ताम हो। इसमें नाकिस से क्या मुराद है जी? ऐसा इस्म जो सिले का मोहताज है या सिफत का मोहताज है, जैसे मन है या माए मौसूला है या माए मौसूफा है, जो मोहताज है सिले का या सिफत का, ये हो गया इसमें नाकिस। और दूसरा इसमें ताम है, यानी उसका माना मुकम्मल है, वो किसी का मोहताज नहीं है, जैसे जैद है, अमर है, बकर है, खालिद है, एक पूरा नाम है। अच्छा, जब ऐसा हुआ एक इसमें ताम एक इसमें नाकिस, तो फाइल और मफूल को पहचानने का तरीका अभी कानून बता रहा हूं। फाइल और मफूल को पहचानने का क्या तरीका जी? इसमें ताम अगर मरफू है तो उसकी जगह पर ज़मीर मुतकल्लिम मरफू को रख दें। इसमें ताम अगर मरफू है तो उसको हटाओ, इसमें ताम की जगह पर ज़मीर मुतकल्लिम मरफू रखें। और अगर वो क्या है मंसूब है, इसमें ताम क्या है मंसूब है, तो उसकी जगह पर ज़मीर नस्बी रख दें। ठीक। अच्छा, उधर वो जो इसमें नाकिस है उसकी जगह पर एक इस्म जो उसके हम माना है, इसमें नाकिस की जगह पर एक इस्म जो उसके माना में है, साहिब अक्ल और अदम अक्ल के लिहाज से उसकी जगह पर रखें। जब आपने ये काम कर लिया, इसमें ताम की जगह पर अगर मरफू था ज़मीर मुतकल्लिम में मरफू रखी, अगर वो मंसूब की हालत में था यानी मंसूब था तो आपने वहां ज़मीर नस्बी रखी, और नाकिस की जगह पर एक इस्म रखा जो उसके हम माना था। ये रखने के बाद देखा मसला आया, ठीक निकला मसला, तो इसका मतलब ये है कि हमारे करार देने से पहले, इस वज़ से पहले भी वो ठीक था। अगर मसला फासिद निकला तो उससे पहले भी फासिद था। अगर हमारी ये कार्रवाई, अगर हमारा ये काम करने के बाद मसला ठीक हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये पहले भी ठीक था। अगर अब ये आपने ये काम किया लेकिन मसला ठीक नहीं निकल रहा मानने के लिहाज से, तो इसका मतलब पहले भी ठीक नहीं था। ठीक हो गई बात आगा जान? तवज्जो फरमाइए, मिसाल से वाज़े करते हैं। आजबा ज़ैदुन मा करेहा अमरुन, आजबा ज़ैदुन मा करेहा अमरुन। यहां अगर हम ये जो माँ है इसकी जगह पर, माँ से मुराद गैर साहिब अक्ल लेते हैं और माँ की जगह पर रख लेते हैं सौब। ठीक है, वो जो जैद है, जैद इसमें ताम है ना, उस इसमें ताम जैद की जगह पर ज़मीर मुतकल्लिम लेकर आते हैं, फेल के साथ ज़मीर मुतकल्लिम लेकर आते हैं, और माँ की जगह पर हम रख रहे हैं एक गैर साहिब अक्ल चीज, माँ को हटा कर क्या सौब। तो माना ठीक निकलेगा या नहीं, देखते हैं। अजब तो सौबा, ये हो जाएगा अजब तो सौबा। ये तो सही नहीं है कि मैंने सौब और लिबास को ताज्जुब में डाला। ताज्जुब जो है वो इंसान करता है, लिबास तो नहीं ताज्जुब करता। सही है या नहीं? इंसान है जो ताज्जुब करता है, कपड़े तो ताज्जुब नहीं करते, लिबास तो ताज्जुब नहीं करता। इसका मतलब ये है कि मेरी बात ठीक नहीं रही। जब तो सौबा, मैंने ये जो काम किया है, मैंने जो इसमें ताम की जगह पर ज़मीर मुतकल्लिम को रखा है और इसमें नाकिस की जगह पर एक गैर साहिब अक्ल चीज जो सौब रखी है,
माना सही नहीं निकल रहा। ठीक है, बस जब ये ठीक ना हुआ तो अब मैं दूसरा काम करता हूं, मैं जनाब जो ज़ैद है, ठीक है या नहीं, उसको नस्ब में करार देता हूं और उसकी जगह पर ज़मीर मफ़ऊली को रखता हूं। ठीक है, तो माना जो है ना वो सही निकल रहा है। ठीक है, यानी ये बन जाएगा अअजबनी अस्सौबो, लिबास ने मुझे ताज्जुब में डाला। मैं इंसान हूं ना, मैं तो ताज्जुब करता हूं, एक लिबास अच्छा नजर आएगा तो लिबास से मुझे ताज्जुब होगा कि ये क्या है। लिबास ने मुझे ताज्जुब में डाला, अअजबनी मुझे ताज्जुब हुआ, अस्सौबो सौब ने मुझे ताज्जुब में डाला। ये तो फिर ठीक है, सही है या नहीं? ऐसे हो गया अगरजान। अच्छा, अगर हम माँ को क्या फर्ज करते हैं, वो जो इसमें नाकिस है माँ, उसको अनवाए अक्ल में से अगर हम शुमार करते हैं, ठीक है, तो फिर वो जो पीछे ज़ैद है इसमें ताम, उस पर रफा पढ़ना भी ठीक है, रफा पढ़ना भी उस पर ठीक है, नस्ब पढ़ना भी ठीक है। यानी आप कह सकते हैं फिर अअजबतुन निसा आ, ये फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगर इसमें नाकिस जो है ना मन हो या अल्लज़ीना हो, इसमें नाकिस मन हो या अल्लज़ीना हो, अभी माँ बता रहे थे, तो फिर दोनों वजह जायज़ हैं। क्या मतलब दोनों वजह जायज़ हैं? ज़ैद को रफ़ा पढ़ना और नस्ब पढ़ना दोनों क्या हैं, ठीक हैं। मसला बड़ा दकीक है और मतलब है इसका इस्तेमाल भी काफ़ी है। न करे ऐसा हो कि मैं मतलब आपकी खिदमत में ना पहुंचा सका हूँ। बात क्या हो रही है एक मरतबा फिर सुने, अगरचे आपके जो है ना कई सर में दर्द में ना डाल दूँ। ठीक है या नहीं? तवज्जो फरमाइए, क्या पढ़ रहे हैं? वो कानून जिसके ज़रिए से फ़ाइल को मफ़ूल से क्या है जान पहचाना जाता है कि फ़ाइल कौन है, मफ़ूल कौन है। और अर्ज़ किया है अपने भाइयों की खिदमत में कि ये अक्सर जो इश्तिबा होता है और ये बात आपस में मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, पता नहीं चलता फ़ाइल कौन है, मफ़ूल कौन है। ये अक्सर वहाँ है, अक्सर की बात कर रहा हूँ कि एक इसमें नाकिस होता है और एक इसमें ताम होता है। फिर सवाल कि इसमें नाकिस से जी क्या मुराद है, इसमें ताम से क्या मुराद है? इसमें नाकिस यानी वो जो मोहताज है सिले का, जो मोहताज है सिफत का, वो होता है इसमें नाकिस। जैसे मन है, माए मौसूला है मसलन, और दूसरा होता है इसमें ताम। इसमें ताम यानी जिसका माना मुकम्मल है, मोहताज नहीं है वो, जैसे ज़ैदा और बकर खालिद। ठीक, अच्छा, अब कानून कैसे पहचानेंगे? कहते हैं तरीका कार ये है कि आप इसमें ताम को हटाओ, उसकी जगह पर ज़मीर मरफूए मुतकल्लिम की लेकर आओ। अगर वो इसमें ताम मरफू है, इसमें ताम मरफू है, उसकी जगह पर ज़मीर मुतकल्लिम में मरफू रख दो। अगर वो मनसूब है तो उसकी जगह पर ज़मीर नस्बी रख दो। किसकी जगह पे भला? इसमें ताम की जगह के ऊपर। ठीक, और उधर है इसमें नाकिस, इसमें नाकिस को भी उधर से हटाओ और उसकी जगह पर उसका हम माना, ठीक, जो साहिब अक्ल होने के लिहाज से या गैर साहिब अक्ल होने के लिहाज से मुनासबत रखता है, उसकी जगह पे रख दो। अब मसले को चेक करो क्या माना ठीक नहीं कर रहा है या नहीं। अगर माना ठीक है तो ये जो हमने कार्रवाई की है, चेंजिंग की है, तब्दीली की है, इससे पहले भी इसका मतलब है वो ठीक था। अगर अब गलत निकल रहा है तो पहले भी वो गलत था। ठीक है, जैसा कि मिसाल अर्ज की थी कि आजब ज़ैदुन मा कारिहा आमरुन, इसमें एक इसमें ताम है ज़ैद, दूसरा इसमें नाकिस है मा। ठीक है, अब यहां क्या करें? ज़ैद जो मतलब है मरफू है इसमें ताम, इसकी जगह पर ज़मीर मुतकल्लिम में मरफू रख दें, माँ की जगह पर एक गैर साहिब अक्ल चीज मसलन सौब लेकर आ जाओ, तो फिर माना ये बनेगा अजब तो असौबा, मैंने सौब को ताज्जुब में डाला, मैंने लिबास कपड़े को ताज्जुब में डाला। तो लिबास ताज्जुब नहीं करते, इसका मतलब है ये गलत है।
जब ये गलत है तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी ये क्या था, गलत था। जब तक हमने ये ज़मीर मुतकल्लिम नहीं रखी थी, उससे पहले जब ज़ैद को फाइल बना रहे थे, ठीक है, पहले भी ये गलत था। अगर हम इसमें ताम को क्या करते हैं, नस्बी हालत में करार देते हैं कि ये मफूल है, अगर ज़ैद को हम इसमें ताम को मंसूब करार दें तो इसकी जगह पे क्या रखना है, भला क्या रखना है, ज़मीर नस्बी इसकी जगह पे आ जाएगी, ज़मीर नस्बी इसको रखेंगे। ठीक, तो अब माने को चेक किया, ठीक है, तो माना ठीक निकल आया। अजबनी असौबो, सौब ने मुझे ताज्जुब में डाला। ठीक, अच्छा, वो माँ से मुराद पहले लिया है गैर साहिब अकल और उसकी जगह पे रखा है सौब। अगर माँ से मुराद साहिब अकल ले लें तो फिर मसला ठीक है, अगरचे ज़ैद से मुराद आप क्या ले लें आगा जान, वही मरफू ले लें ज़ैद से, इसमें ताम की जगह पर ज़मीर मुतकल्लिम रखें, फिर भी मसला हमारा ठीक है, कोई मसला नहीं है। तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कलतु अलल्लाह हस्बी अल्लाह। मा युरफु बिहिल फाइलु मिनल मफऊल। मा यानी वो कानून जिसके ज़रिए से फ़ाइल को मफूल से पहचाना जाता है। व अक्सर मा यश्तबिह ज़ालिका इज़ा कान अहदुहुमा इस्मन नाकिसन वल आखरु इस्मन तामन। वल अक्सर मा यश्तबिह ज़ालिका, अक्सर जहाँ ये इश्तिबा होता है, ज़ालिका क्या, फ़ाइल और मफूल का मिलना, अक्सर जो ये इश्तिबा होता है, इज़ा कान अहदुहुमा इस्मन नाकिसन, जब उन दोनों में से एक इसमें नाकिस हो, वल आखरु इस्मन तामन और दूसरा इसमें ताम हो। व तरीक़ मारिफत ज़ालिका अन तजल्ला फ़ी मौज़ि ताम इन कान मरफ़ूअन ज़मीर अल मुतकल्लिम अल मरफ़ू। तरीक़ मारिफत ज़ालिका, ज़ालिका फ़ाइल और मफूल को पहचानने का तरीका ये है, अन तजल्ला फ़ी मौज़ि ताम, कि आप मौज़े ताम इसमें ताम की जगह पे करार दो, इन कान मरफ़ूअन, इसमें ताम मौज़े ताम की जगह पर अगर वो मरफू है, ज़मीर मुतकल्लिम मरफू को करार दो। व इन कान मनसूबन ज़मीरहुल मनसूब, व इन कान मनसूबन, अगर वो इसमें ताम मनसूब है, इन कान मनसूबन, अगर वो इसमें ताम मनसूब है, ज़मीरहुल मनसूब, तो ज़मीर मनसूब को उसकी जगह पे करार दे दो। व तुबदल बिन नाकिस से इस्मन बेमाना हो फिल अक्ल व अदमी, और इसमें नाकिस को तब्दील करो इस्मन, इस्म में बेमाना हो जो इसमें नाकिस के माना में है। व तुबदल बिन नाकिस इस्मन, इसमें नाकिस को तब्दील करो इसमें बेमाना हो जो उसके माना में, किस में, फिल अक्ल व अदम, अक्ल और अदम अक्ल में। फ़इन सहतिल मसअला बाद ज़ालिका, अगर मसला सही हुआ बाद ज़ालिका, ज़ालिका का इशारा किया है, बाद ये करार देना, बाद इसके के ये जो हमने तजल्ला फ़ी मौज़ि ताम इन कान ज़मीर अल मुतकल्लिम, ये जो करार नहीं दिया, करार देना बाद ज़ालिका, इन सहतिल मसला बाद ज़ालिका, अगर मसला ठीक है बाद ज़ालिका, ये करार देने के बाद, फ़हिया सहीहतुन क़ब्लहू, फ़हिया तो ये मसला सही है क़ब्लहू, क़ब्ल करार देने के, क़ब्लहू यानी क़ब्ल इस करारदाद के, क़ब्ल इस रखने के भी ये सही था। व इल्ला फ़हिया फ़ासिदतुन, व इल्ला यानी इन लम तका, अगर करार देना सही ना हुआ, इन इल्ला यानी इन लम तका, अगर ये करार देना हमारा सही ना हुआ, फ़हिया फ़ासिदतुन, तो ये फासिद था। फला यजूज़ु अजब ज़ैदुन मा करिहा अमरुन, पस जैद नहीं है अजब ज़ैदुन मा करिहा अमरुन, इन उकियत मा अला मा ला युकल, अगर माँ को करार दिया जाए अला मा ला युकल, ठीक है ना, इन
उकियत मा अला मा ला युकल, तवज्जो, अगर माँ की जगह पे करार दिया जाए ऐसी चीज मा ला युकल जो साहिब अकल नहीं है, इन उकियत मा, अगर माँ की जगह पे करार दिया जाए अला मा ला युकल जो साहिब अकल नहीं है, ठीक, ले अन्नहु ला यजूजो आजब तो सौबा, इसलिए कि जायज नहीं, आजब तो सौबा, मैंने लिबास को ताज्जुब में डाला, लिबास कोई ताज्जुब करता है, गलत हो गई ना बात। व यजूजो नस्ब, नस्ब किसकी, नस्ब जैद, जैद को नस्ब देना जायज है, ले अन्नहु यजूजो आजबनी अस्सौबो, चूंकि जायज है आजबनी अस्सौबो, लिबास ने मुझे ताज्जुब में डाला। तो जो फरमा रहे हो जब जैद को नस्ब देनी है ना तो उस जैद की जगह पे ज़मीर मफूली रखनी है हमने, तो हो जाएगा आजबनी, ठीक है। और फिर पढ़ा अस्सौबो, सौब ने मुझे ताज्जुब में डाला, ये तो ठीक है। फ़इन उकियतमा अला अनवाए मई याकल जादा, फ़इन उकियतमा, अगर माँ की जगह पे रखे क्या, अला अनवाए मई याकल, ऐसी चीज जो साहिब अक्ल है, साहिबान अक्ल की नौ में से कोई रखे माँ की जगह पे, जादा जायज है, क्या जायज है, रफ जैद भी जायज है और नस्ब जैद भी सही है। अगर माँ से मुराद साहिबान अक्ल ले लिया ना तो फिर जैद को रफा देना भी और नस्ब देना भी जायज है, क्यों, लिअन्नहु यजूजो आजबतुन निसा, क्योंकि जायज है ये कहना आजबतुन निसा कि मैंने खवातीन को ताज्जुब में डाला, खवातीन भी तो इंसान हैं, ताज्जुब कर सकती हैं। व इन कानल इस्मुन नाकिसु मन औ अल्लज़ीना जाज़ल वजहान ऐज़न, अगर इसमें नाकिस मन हो या अल्लज़ीना हो जाज़ल वजहान ऐज़न, फिर भी दो वजह जायज़ हैं, दो वजह जायज़ हैं, यानी रफ ज़ैद व नस्ब ज़ैद, हर दो जो है ना सही हैं। अगर इसमें नाकिस जो है क्या हो, इन कानल इस्मुन नाकिस मन और अल्लज़ीना, अगर इसमें नाकिस मन या अल्लज़ीना हो जाज़ल वजहान ऐज़न, फिर भी दो वजह जायज़ हैं, रफ ज़ैद और नस्ब ज़ैद, ज़ैद को रफा देना और नस्ब देना, हर दो जो है ना क्या है जान, सही हैं। ठीक हो गई बात अजीज़ों, मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।